Hi everyone, welcome back to my channel Social Shastra. Today we'll discuss about the crucial topic for students who are also preparing for their PhD entrance exam. Now I know it might sound a bit intimidating at first, but trust me, understanding research methodology is essential for every subject and can greatly benefit your academic journey. So, what exactly is research methodology? Well, it's the systematic approach or framework that researchers use to conduct their studies and get the reliable data. It helps us answer questions like how to collect data, which methods to use, and how to analyze and interpret the findings. Now, I know you might be wondering why research methodology is asked in every subject. The reason is simple. Research is the backbone of any field of study. Whether you are in science, social sciences, or research methodology, it provides you with the tools to investigate and explore your chosen subject in structured and rigorous manner. And when it comes to PhD entrance exams or any other entrance exams, understanding research methodology become even more critical. Universities wants to ensure that candidates have a solid foundation in research techniques and can contribute meaningfully to their respective fields. So they often include questions that assess your understanding of different research methods, sampling techniques, data analysis, and ethical consideration. So let me give you an example of how a question on research methodology might be asked. Imagine you are given a scenario where a researcher wants to study the effects of a new medication on patients with a specific disease. Okay. The questions might ask you to design an appropriate research methodology for the study. You would need to consider factors like sample size, randomization, control groups, data collection methods, and statistical analysis. To excel in these type of questions, it is very important to familiarize yourself with different research design. Additionally, understanding statistical concepts like hypothesis testing, significance level will greatly enhance your ability to answer these questions effectively. So, research methodology is a fundamental aspect of academic pursuits and it is very important and its importance cannot be overstated. It serves as a guide for conducting reliable and valid studies across all the subjects, whether it is science, social sciences. So, if you are aspiring to pursue a PhD or simply want to enhance your research skills, make sure to invest time in understanding and mastering research methodology. सो इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, आने वाले जो भी इसके पार्ट्स आएंगे मैं आपको सब वीडियोस को पार्ट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, जैसे कि हमने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट PYQ का पार्ट किया, हमने इससे पहले जो थिंकर किया था इमाइल दरखाइम, उनको हमने एक एक कॉन्सेप्ट को हमने पार्ट्स में डिस्कस किया है। बेसिकली पार्ट्स में डिस्कस करने से हमें उस टॉपिक को समझने में ईजी हो जाता है। जैसे आपने वीडियो देखी उसके बाद आपने उसको रिवाइज कर लिया तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आज इस टॉपिक में हम लोग जो भी यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीजीटी यानी एग्जाम्स पीजीटी रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, आरपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, कोई भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम है उनमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाती है। तो आज हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो ब्रीफली लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ. My name is Bharti and I have completed BA in English Honors, Masters in Sociology, BEd, UGC NET twice, JRF and CTET. So now let's get started. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज साइंस। तो जो साइंस होती है ना वो अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं होकर के एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं या फिर गेन कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे जो नेचुरल साइंसेज होती हैं, जैसे जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, उनमें जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी या साइंटिफिक मेथड जो वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहाँ पे जो सोशल साइंसेज होती है ना उनमें जो सोशल इवेंट्स हो रहे हैं उनको समझने के लिए भी इस हम लोग टेक्निक का या इस मेथड का यूज करते हैं। किसी भी जो सब्जेक्ट मैटर है उसका जो ज्ञान भंडार होता है उसको साइंस बनाने के लिए इस बात पे जरूर इंपॉर्टेंस दी जाती है कि उसे कैसे गेन किया गया है, कैसे प्राप्त किया गया। जैसे किसी पद्धति को काम में लिया गया, कौन सी इसमें मेथड यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बताऊं आपको, अगर कोई साइंटिफिक मेथडोलॉजी है उसकी अगर हम लोग हेल्प लेते हैं तो जो सोशल इवेंट्स हो रहे हैं उनको समझने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर या फिर मेथडोलॉजी यूज की जा रही है उसको हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है। साइंस इन itself is not a subject but an object which has been obtained through scientific methods। और साइंटिफिक मेथड जैसे जो नेचुरल साइंसेज में यूज होता है यानी कि प्राकृतिक विज्ञान में होता है, वैसे ही हमारे सोशल साइंसेस यानी सामाजिक विज्ञान में भी यूज किया जाता है, ताकि हम लोग जो सोशल इंसिडेंट्स हैं, जो सामाजिक हमारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको समझ सकें। उसके बाद जो ये साइंटिफिक मेथड है यूज किए जाते हैं ताकि इनको समझने के लिए जो सोसाइटी में हैपनिंग्स हो रही हैं, जो सोसाइटी में सोशल इवेंट्स हो रहे हैं उनको समझने के लिए, तो उन्हें हम साइंस कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, जैसे जो स्टुअर्ट चेज जो थे उन्होंने लिखा कि दैट साइंस इज रिलेटेड टू मेथड्स नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर। साइंस क्या होती है, साइंस रिलेट किससे करती है, मेथड से रिलेट करती है, यानी कि हमारे जो हमारा
इम्पोर्टेंस पद्धति को दी जाती है, ना कि उसके सब्जेक्ट मैटर को दी जाएगी। उसी हिसाब से हम लोग इनकी अगली जो बोली गई थी, प्रोफेसर ग्रीन ने जो बोला था, प्रोफेसर ग्रीन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रोफेसर ग्रीन बोलते हैं कि जो जितने भी विज्ञान है यानी कि जितने भी साइंस है उनको समझने के लिए हमें जो मेथड्स यूज किए जाएंगे उन्हें ही हम लोग साइंटिफिक मेथड्स कहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लियर इट ऑल। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि साइंस इन इटसेल्फ इज नॉट अ सब्जेक्ट बट एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज बीन obtained थ्रू साइंटिफिक मेथड। Science methods are used in natural sciences, similarly in social sciences too. I hope this is clear to everyone. नेक्स्ट बोलते हैं कि साइंस का मीनिंग क्या है। स्टुअर्ट ने हमें बताया, डेफिनेशन दी थी। ये डेफिनेशन आपको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको डेफिनेशन दे करके 4 ऑप्शन से पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है। उसके बाद कार्ल पियर्सन जो थे वो बोलते हैं कि ऑल साइंसेज आर यूनाइटेड इन देयर मेथड्स एंड नॉट इन देयर सब्जेक्ट मेथड, यानी कि जितने भी विज्ञान है उनकी एकता उनकी पद्धति में है, ना कि केवल उनकी विषय वस्तु में। उसके बाद जो बीसन्स एंड बीसन्स थे उन्होंने बोला कि दिस इज मेथड्स एंड नॉट अ सब्जेक्ट मैटर व्हिच इज अ चैलेंज फॉर साइंस। उनका मानना था कि जो पद्धति है ना, यह एक पद्धति है, ना कि एक विषय सामग्री जो कि विज्ञान के लिए चैलेंज है, यानी कि साइंस के लिए एक चैलेंज है। अकॉर्डिंग टू लुनबर्ग की बात करें हम लोग तो लुनबर्ग बोलते हैं कि टू ट्राई टू डिफाइन साइंस एज अ सब्जेक्ट मैटर क्रिएट्स कंफ्यूजन। लुनबर्ग का मानना था कि विज्ञान जो यानी साइंस जो है उसके सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए या विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने के लिए का जो प्रयत्न या जो भ्रम उत्पन्न करता है। उनका मानना था कि जो साइंस है ना वो साइंस ही है, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, सोशल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, कोई सी भी साइंस हो, साइंस जो है वो साइंस ही रहती है। उन्होंने ये जो लैंडिस थे वो मानते थे कि साइंस इज साइंस वेदर इट इज फिजिक्स और सोशियोलॉजी। जो साइंस होती है वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, एनी नेचुरल साइंस और एनी सोशल साइंस, तो वो हमारी साइंस ही रहती है। जो बर्नार्ड्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किए थे 6 प्रोसेस साइंस के। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन मेनी एग्जाम्स ये पूछा जा चुका है। आपको इनमें से ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये ऑप्शन दिए जाएंगे और कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको बताना होगा कि कौन सा बर्नार्ड्स ने नहीं बताया है। तो उन्होंने 6 प्रोसेसेस बताए थे। पहला था टेस्टिंग, सेकंड था हमारा वेरिफिकेशन, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशंस, फिर है क्लासिफिकेशंस, देन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ओरिएंटेशन। दीज आल्सो इंक्लूड प्रेडिक्शन एंड एप्लीकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें, ये देखा जाता है कि जो भी इम्पोर्टेंट हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी बता रहे हैं कि क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो इस रिजल्ट के साथ मैच हो रहा है या नहीं, उस प्रिडिक्शन को हम लोग बोलेंगे कि साइंस। अगर रिजल्ट ऑब्टेन जो हमने किया है रिसर्च में वो वेरीफाई करता है फ्यूचर में तो वो फैक्ट बन जाता है। इसलिए साइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, साइंस में एबिलिटी है प्रिडिक्ट करने की, यानी कि भविष्यवाणी करने की। लास्ट है हमारा सेकेंड लास्ट है हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है उसको साइंस इसलिए भी बोला जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स अगर उन्होंने फैक्ट्स के बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया है, मतलब हमने अपनी ऑब्जेक्टिविटी ना लगा करके उसमें हम लोग अपनी सब्जेक्टिविटी ना लगा करके ऑब्जेक्टिवली हमने डाटा कलेक्ट किया है। जो स्टूडेंट्स हैं या जो रिसर्चर है उसका जो माइंड होना चाहिए वो साइंटिफिकली होना चाहिए, ना कि हम लोग अपने कुछ उसमें बायसेस या प्रेजुडिसेस डालें। लास्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। अगर हम वही ऑब्जेक्टिविटी की बात करें यानी कि तटस्थता की बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट है या जो रिसर्चर है वो अनबायस्ड रहना चाहिए और जो डाटा या जो इंसिडेंट है वो जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है उसको रियल फॉर्म में यानी कि एज इट इज उसे प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि उसमें उसको अपने जो उसके सब्जेक्टिव ओपिनियंस है उनको प्रेजेंट करे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल की खुद की जो चॉइसेस हैं, एटीट्यूड्स हैं या इंटरेस्ट हैं और या फिर उसके जो खुद के जो फियर्स हैं वो जो हमारी रिसर्च है उसको इम्पेक्ट नहीं करने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी रिसर्च में हम लोग देख रहे हैं तो हम उसको साइंटिफिक मेथड या साइंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है, हम लोग किस चीज को साइंटिफिक मेथड बोलेंगे। साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है यानी कि कोई भी वैज्ञानिक पद्धति किसको बोलेंगे, तो साइंटिफिक मेथड इज वन वेयर इन द स्टूडेंट स्टडीज एनी सब्जेक्ट। एक ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जहां पर प्रॉब्लम ऑफ इंसिडेंस इज अनबायस्ड मैनर में पढ़ रहा है। मैं आपको इन कॉमन लैंग्वेज समझाती हूँ कि साइंटिफिक मेथड मतलब कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ होता है कि जब कोई भी स्टूडेंट है
वो जो कोई प्रॉब्लम पे स्टडी कर रहा है या कोई रिसर्चर है वो उसको पढ़ रहा है, तो हम लोग उसको अनबायस्ड मैनर, अनबायस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष रूप से अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, हम अपनी कोई भी पर्सनल प्रेजुडिसेस, कोई भी पर्सनल ओपिनियंस, कोई पर्सनल रियलिटी उसके अंदर अगर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक मेथड। मैंने आपको लास्ट में कुछ पिछले जो स्लाइड थी उसमें आपको मैंने 6-7 पॉइंट्स बताए थे। अगर कोई भी स्टडी है उसमें वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मीन्स दैट स्टडी इज साइंस, उसको हम लोग साइंटिफिक मेथड के थ्रू पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो जो लुनबर्ग थे उनकी ये डेफिनेशन है, he observes and collects facts through questionnaire, a list or any other such module. He characterizes and grades, analyzes and describes, find the relation between the facts and reason, generalizes, draws specific conclusion and verifies. It increases the prediction ability. ये हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको एज इट इज ऐसे याद करना होगा कि साइंस में आपको जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया वो कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इनमें कौन से पॉइंट्स हैं जो जिनको हम बोल सकते हैं कि साइंस के लिए करेक्ट नहीं है, या फिर इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग किन को साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं, किसको नहीं बोल सकते हैं। और जब ये सारे पॉइंट्स अगर साइंस में है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सारे पॉइंट्स अगर इकट्ठे होकर के काम कर रहे हैं तो ये प्रिडिक्शन की एबिलिटी जो है, यानी कि भविष्यवाणी की एबिलिटी जो है उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि साइंटिफिक मेथड जो होता है वो बेस ऑफ नॉलेज होता है, किसी भी नॉलेज का बेस माना जाता है। इसके थ्रू हम लोग फैक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो तथ्य होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जो साइंटिफिक मेथड होता है ना उसके अंदर हम लोग हाउ, व्हाई, वेयर, इन चीजों को तो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसेट होता है वो होता है कि व्हाट इज डिस्क्राइब, व्हाट का क्वेश्चन जो है हम लोग उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्ट्स आर कैटेगराइज एंड एनालाइज, जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य जो होते हैं उनको हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं पहले, उसके बाद उनका एनालिसिस करते हैं। और जो साइंटिफिक मेथड होते हैं उनमें जैसे मैंने आपको बताया एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, यानी कि प्रिडिक्शन करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हमें मेजर स्टेप्स दिए गए हैं सोशल रिसर्च के, ये आपसे काफी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे जो टेबल के फॉर्म में लेकर आई हूँ आपको एज इट इज इसको याद करना है, क्योंकि आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाएगा तो काफी बार जैसे आपको बीच में दे दिया जाएगा, जैसे एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू आपको पहले दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को बहुत माइनर माइनर से पॉइंट है, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कोई भी रिसर्च करें तो हमें सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम पे स्टडी करना चाहते हैं। उसके बाद एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, जैसे आप में से काफी लोगों ने सिनॉप्सिस बनाया होगा फॉर द एडमिशन और फॉर एनी टेकिंग एडमिशन इन पीएचडी और एनी मास्टर्स। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सिनॉप्सिस में, पहले हम लोग अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं कि हमें किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करनी है। टॉपिक डिसाइड हो गया, उसके बाद हम उस टॉपिक पे देखते हैं कि पहले कौन कौन सी रिसर्च की जा चुकी है, पहले किस किस ने उसके बारे में पढ़ा है, उनके क्या ओपिनियंस रहे हैं, क्या उन्होंने रिजल्ट निकाला है। तो उसको बोलते हैं हम लोग लिटरेचर रिव्यू करना। उसके बाद हम उसके बेसिस पे जो लिटरेचर रिव्यू हो चुका है उसके बेसिस पे हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। इन अपकमिंग वीडियोस आई विल टेल यू कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे फॉर्मुलेट होती है, उसके क्या क्या प्रॉज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो हम लोग हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि हमने जो भी टॉपिक बनाया उसके बेसिस पे हमने जो जो हमें लग रहा है कि हम इसमें ये पॉइंट्स पढ़ना चाहते हैं उनको हमने मेंशन आउट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हम फॉर्म करना चाहते हैं, उनको हमने पॉइंट्स में लिख दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो रिसर्च डिजाइन है, सैम्पल डिजाइन भी इसमें इंक्लूड होता है, कि यानी कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है एक तरह से, कि हमें जो हमारी स्टडी करनी है उसको किस तरीके से करनी है, हमारा क्या पैटर्न रहेगा, क्या टेक्निक्स हम उसमें यूज करेंगे। मतलब एक तरह से जैसे घर बनाते हैं तो हम घर बनाने से पहले उसके लिए एक नक्शा तैयार करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग जब कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग एक नक्शा यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि हमारी स्टडी होगी उसमें ये पॉइंट मेंशन होंगे, ऐसे ऐसे स्टेप्स होंगे। वो सारा जो मेंशन किया जाएगा, डाटा कौन सी टेक्निक से कलेक्ट होगा, कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज होगा, उन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट है कलेक्टिंग द डाटा, उसके बाद हम लोग डाटा कलेक्ट करने जाते हैं। डाटा कलेक्शन की हमारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, इन अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस दैट। तो कौन सी टेक्निक से हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्शन के बाद हम लोग उस डाटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए भी हमारी अलग अलग टेक्निक्स है कि पहले टेबुलेशन करना है या क्लासिफिकेशन करना है, फिर उनको हम लोग किस तरीके से टेबल में पुट करेंगे, फिर उनको एक एनालिसिस करेंगे। डाटा का एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद हम उसको जर्नलाइज और इंटरप्रेट करते हैं। जर्नलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण करना। हम उसके बेसिस पे एक जर्नलाइज इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमने जो स्टडी अब तक की है उसके बेसिस पे हमने ये फैक्ट्स जो हमारे निकल कर आए हैं उनको हम लोग जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट करते हैं कि जो हमारी पूरी जो रिसर्च थी उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहे हैं जिनको हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें हाईलाइट करते हैं।
दिस इज क्लियर टू एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ध्यान रखने हैं जो कि रिसर्च में कोई भी आपको ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा कि बहुत लंबा चल रहा है। छोटे छोटे से बहुत सारे पॉइंट है, जैसे ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी, या फिर डाटा क्या है, फैक्ट्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कनेक्ट करके रखने हैं ताकि आपकी जो रिसर्च है वो एक साथ कंबाइंड रहे, क्योंकि सीक्वेंस में चलती है। अब मैं आपको सीधा उठा के पढ़ा देती हाइपोथेसिस क्या होती है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस से पहले जो पॉइंट्स आते हैं आपको वो पता होने चाहिए। बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, साइंस क्या होती है, हाइपोथेसिस कहाँ यूज होती है, उसके जो प्री हमारे रिक्विजिट्स हैं हमें वो पता होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी की मीनिंग क्या है या फिर उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए गए हैं, हमें वो सब चीजें पढ़नी है। तो ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी के लिए एक और वर्ड यूज होता है, वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात किसने की थी, मैक्स वेबर ने की थी। हम लोग मैक्स वेबर जब पढ़ेंगे तो डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ाऊंगी। मीनिंग क्या है ऑब्जेक्टिविटी का या वस्तुनिष्ठता का। देखो जैसे कोई भी साइंस होती है, चाहे वो सोशल साइंस हो या फिर हमारी नेचुरल साइंस हो, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है नॉलेज गेन करना। लेकिन उस नॉलेज को भी हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं, अपनी सब्जेक्टिविटी के थ्रू। जो नॉलेज गेन की गई है वो नॉलेज गेन करनी, प्रॉपर नॉलेज गेन करना नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने जो पर्सनल हमारे प्रेजुडिसेस हैं, बायसनेस है, उनको अलग करके हमें ऑब्जेक्टिवली हमें जो नॉलेज हम गेन करते हैं अनबायस्ड वे में, उसको हम लोग बोलते हैं साइंस, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया। अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड, यहाँ पे डेफिनेशन देकर के आपको एग्जाम में पूछ लेगा डेफिनेशन किसकी है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी बाय विच अ स्कॉलर, कोई भी स्कॉलर है, कोई रिसर्चर है, कोई स्टूडेंट है, इज एबल टू कीप अवे फ्रॉम सिचुएशन। अगर वो अपने आप को उस सिचुएशन से अलग रख करके एज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देख पा रहा है, उससे अपनी फीलिंग्स को ना अटैच करके, या उस सर्वे से अपने जो उसके फैक्ट्स हैं उसको एज इट इज प्रेजेंट करके, यानी कि ओरिजिनल वे में, अनबायस्ड वे में प्रेजेंट करके अगर वो देख पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कलेक्शन ऑफ डाटा। I hope this is clear. From the above definition, we can say that objectivity का यानी कि वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या हुआ, viewing and presenting events in their real form by being unbiased। जैसे मैंने आपको बताया अभी, किसी भी डाटा को अगर हम लोग अनबायस्ड वे में, निष्पक्ष रूप से अगर हम उसमें अपनी फीलिंग्स को ना अटैच करके अगर हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यह एक ऑब्जेक्टिव डाटा है। The root basis of objectivity include the unbiased perspective of researcher, यानी कि जो रिसर्चर है उसको अनबायस्ड रहना है, ना कि उसमें अपनी बायसनेस या अपने पर्सनल ओपिनियन फॉर्म करने हैं। जो रियल सर्वे एंड एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कि एज इट इज, जो जैसा है उसको हमें वैसा ही प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठता क्यों जरूरी है। कोई भी स्टडी होती है हम उसमें अपनी सब्जेक्टिविटी भी तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है टू मेक सोशोलॉजिकल स्टडीज साइंटिफिक। कोई भी अगर सोशोलॉजिकल या समाजशास्त्रीय अध्ययन है उसको हमें वैज्ञानिक बनाना है। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का मानना होता है कि जो सोशोलॉजिकल स्टडी होती है वो साइंस नहीं होती, या फिर जो सोशल साइंसेज है, बेसिकली जो हमारा सोशोलॉजी है वो साइंस नहीं है। सिमिलरली उसी तरीके से हम देखें कि जो उसके मेजर कारण है, यानी ये जो सामाजिक घटनाओं की जो जटिल प्राकृतिक और अध्ययनकर्ता का जो हमारा दृष्टिकोण है, वो अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और लेकिन उस मुश्किल होने के बावजूद भी अगर हम उसे अपना रहे हैं, तो दैट इज साइंस। सेकेंड पॉइंट इज फॉर सक्सेसफुल यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके सफल प्रयोग के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें जैसे कि जो ट्रुथ होता है उसको पहुंचाने के लिए, तो हमें ऑब्जेक्टिविटी को अपनाना होगा। अगर हम लोग किसी भी स्टडी में अपनी पर्सनल बायसेस पहुंचाते हैं या पर्सनल बायसेस निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जो हाइपोथेसिस बनाए और एंड में जो मेरी स्टडी थी उसमें मैंने वो जो पॉइंट्स मुझे रिसर्च में निकालने थे वो नहीं निकले, तो वहां मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस को करके उसमें डाटा में अगर मैं हेर फेर कर देती हूँ, तो वो डाटा या जो स्टडी क्या हो जाएगी, वो सब्जेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें अपने पर्सनल ओपिनियंस जो मैं निकालना चाहती थी मैं वो नहीं निकाल पाई हूँ, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ी सी हेर फेर कर दी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो सब्जेक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट है टू गेट अनप्रेजुडिस्ड कंक्लूजन। अनप्रेजुडिस्ड का मतलब होता है हमारा यहाँ पे जो डाटा होता है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कौन से यूज करना चाहिए, ओपिनियंस का। अनप्रेजुडिस्ड यानी कि हमारे जो खुद के जो निष्पक्ष निष्कर्ष हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमें अपने ओपिनियंस को नहीं उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टिगेटर। ऑब्जेक्टिविटी किस लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो रिसर्चर होता है उसको हम लोग ये दिखा सकें
क्या कि जो रिसर्च हमने की है वो हम लोगों ने अपने पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे नहीं की है, बल्कि जो डाटा जैसा हमने सोसाइटी में देखा, जो हमने फील्ड में डाटा कलेक्ट किया, उसको हमने एज इट इज प्रेजेंट किया है। हमने अपनी उसमें पर्सनल बायसनेस या कोई भी पर्सनल प्रेजुडिसेस इंक्लूड नहीं की है। तो नेक्स्ट है टू गेट रिड ऑफ फेलिसीज, यानी कि जो भ्रांतियां होती हैं समाज में, उनसे दूर होने के लिए, यानी कि उनके उनको खत्म करने के लिए, रिड ऑफ होता है समाप्ति के लिए। ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट। यस, हरी इन रिसर्च वर्क मीन्स कि जो काफी बार क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है उसके पास टाइम कम होता है, तो उस कम टाइम के चक्कर में वो क्या करता है कि अपनी रिसर्च को जल्दी करने के लिए उसके अंदर अपने प्रेजुडिसेस भी डाल देता है कि ऑब्जेक्टिवली अगर डाटा को हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए ताकि हम लोग जो रियल स्टडी है उसको कर सके। लेकिन अगर जो रिसर्चर है उसको काम करने में थोड़ा टाइम है और उसे जल्दी रिसर्च प्रेजेंट करनी है, तो वो जल्दी के चक्कर में कुछ भी डाल देगा, मतलब अपने खुद के जो ओपिनियंस है वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। काफी बार जो रिसर्चर होते हैं उनके खुद के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि मुझे कोई स्टडी करनी है किसी टॉपिक पे पर्टिकुलरली, लेकिन उसमें क्या होगा कि मैं जो निकालना चाहती हूँ, अगर मेरे को वो डाटा में हमने जो कलेक्ट किया है वो सेम पॉइंट अगर कंक्लूजन में मेरे या रिसर्च को जब मैं रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही हूँ वो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, जो मेरी खुद की ओपिनियंस है जो मैं निकालना चाह रही थी उसी को मैं डाल दूंगी। मैं डाटा को एज इट इज प्रेजेंट नहीं करूंगी। तो इसमें क्या होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। और नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। जो रिसर्च है वो एक ऐसी काम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाकर के रिसर्च कर सकता है, नो। इसलिए पीएचडी इज द हाईएस्ट डिग्री, और उसमें भी आपको 1 साल का कोर्स वर्क दिया जाता है, यानी कि कोर्स वर्क के टाइम पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि सिस्टमैटिकली आपको बताया जाएगा कि क्या चीज़ कैसे की जाती है। अब कोई भी जाकर के फॉर एग्जांपल किसी ने 12th किया और जाकर के सीधा पीएचडी तो नहीं कर सकता। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो पर्टिकुलरली ट्रेनिंग दी जाती है, उसके थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो काफी बार जो ट्रेनिंग नहीं दी जा पा रही है, या कोई व्यक्ति है जिसको ट्रेनिंग उसने ली है पर उसको समझ में कुछ भी नहीं आया, या ट्रेनिंग उसने जाकर के ली नहीं और फिर भी रिसर्च शुरू कर दिया, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा डाटा होगा वो ऑब्जेक्टिवली हमें अचीव नहीं होगा, और सब्जेक्टिवली हमारे जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है रिसर्चर वो उसमें डालने की कोशिश करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है कि हम लोग अगर ऑब्जेक्टिविटी है उसको अचीव करने में हमें डिफिकल्टी होती है, लेकिन कौन से तरीके हैं जिनको हम उस डिफिकल्टी से दूर कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी अगर हमें स्टडी को अटेन करना है या कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करना है, तो हमें पहले जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका किसी रेफरेंस में कुछ और मीनिंग होता है, किसी रेफरेंस में कुछ और मीनिंग होता है। जो हमारे जो यूजेज ऑफ वर्ड्स होते हैं सोशल साइंसेज में, नॉर्मली वो लोग सेम, वो जो वर्ड्स होते हैं वो सेम मीनिंग कन्वे नहीं कर पाते। जैसे उसका रिजल्ट क्या होगा, जो सोशल साइंसेज में हम फिर रिसर्च कर रहे हैं वो हमें जो क्लाइमेक्स होगा, जो उसका रिजल्ट होगा वो क्लियर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें जो टर्म्स होती हैं उनको ऑब्जेक्टिवली, जो ऑब्जेक्टिविटी होती है सोशल साइंसेज में, उनको अचीव करने के लिए जो टर्म्स या कॉन्सेप्ट है उनको स्टैंडर्डाइज करना इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्टैंडर्डाइज का मतलब हो गया उनका मानकीकरण करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है हमारा, इसमें मिनिमम डिपेंडेंसी ऑन फील्ड इन्वेस्टिगेटर। मिनिमम डिपेंडेंसी ऑन फील्ड इन्वेस्टिगेटर का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हैं वो जो किए जा रहे हैं वो एक रिसर्चर के द्वारा नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीके से किए जाने चाहिए, जिसमें जो बायसनेस है या जो प्रेजुडिसेस है उनको हम लोग खत्म कर सके। लेकिन मैंने रिसर्चर जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, देयर शुड बी नो स्कोप फॉर पर्सनल फ्रीडम एंड देयर शुड बी प्रोविजन फॉर फुल कंट्रोल ओवर द रिसर्चर। यानी कि हम लोग देखते हैं कि काफी बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद से रिसर्च करता है, किसी से चेक नहीं कराता, किसी से कुछ नहीं कराता। तो उसमें क्या होगा कि उसकी खुद की जो ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी है वो उसमें फॉर्म होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है उसके ऊपर हमें मिनिमम डिपेंडेंसी रखनी चाहिए। और एक से ज्यादा लोग उस अगर स्टडी को रिव्यू करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी हमारी ऑब्जेक्टिविटी है वो अचीव हो पाएगी। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स, यानी कि जो यांत्रिक साधन होते हैं उनका यूज होना इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होगा कि जैसे हम लोग देखते हैं आज की तारीख में जो प्रैक्टिकल मेथड है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। प्रैक्टिकल मेथड को यूज करने से क्या होता है कि जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी है ना उसको ज्यादा अटेंशन में, और इसका एक फायदा ये भी होगा जो हमारे जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर मैकेनिकल डिवाइसेस का अगर हम यूज करेंगे तो जो हमारा डाटा होगा उसको हम पीस में स्टडी नहीं करेंगे बल्कि एक साथ एज अ होल स्टडी कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कि फैक्ट्स क्या होते हैं, थ्योरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये हमें पढ़ने हैं। क्योंकि काफी बार आपको डेफिनेशन देके पूछ लिया जाएगा कि ये फैक्ट है, थ्योरी है, या फिर कॉन्सेप्ट है, या फिर हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर फैक्ट्स इन इंग्लिश? वी हैव टू सेपरेट वर्ड्स। तो फैक्ट्स होता है और एक डाटा होता है, जिनको हिंदी में हम लोग अगर बात करें तो एक ही साथ यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं पर बट द टू वर्ड्स आर नॉट सिनोनिमस, बट जो ये जो फैक्ट्स और डाटा जो वर्ड्स हैं वो सेपरेट वर्ड्स हैं, उनके सेपरेट मीनिंग्स हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंटली।
जैसे कि इन रिसर्च अगर हम बात करें, जो डाटा व्हेन द कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज इज बीइंग डन, अगर हमारे जो रिस्पॉन्स हम फील्ड में जाकर के अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस पूछे, फिर उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो हमारा क्या होगा, डाटा। लेकिन अगर उन्हीं जो रिसर्च में हमने डाटा कलेक्ट किया उसी को हमने अगर वैलिडेट कर दिया तो वो क्या बन गया, वो हमारा फैक्ट बन गया। I hope this is clear. In journal, concept can be called as a prefix also. In scientific research, concept is for direct representation, classification and knowledge. It has an important place in theory formation. कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम प्राइमरी लेवल पे देखें तो एक्चुअल जो सिचुएशन होती है ना, उसको अगर हम फैक्चुअल सिचुएशन में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। देन दे आर मैनेज और एनालाइज इन लॉजिकल मैनर में। अगर हम कुछ भी एनालाइज कर रहे हैं, कोई फॉर्म कर रहे हैं थ्योरी को, तो वो हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कॉन्सेप्ट आर नॉट स्टेबल बट दे आर कॉन्टिन्यूस चेंजेस। कोई भी अगर एक कॉन्सेप्ट है, उसके मीनिंग में हम लोग कॉन्स्टेंटली हमें उससे नहीं कह सकते ये स्टेबल मीनिंग हो। वो टाइम टू टाइम हमारा डेवलप करता रहेगा, उसमें कॉन्टिन्यूस चेंजिंग आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे उसके मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है हमारा थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी का मतलब होता है, इट इज क्वाइट कॉमन इन सोशल साइंसेज एंड हैव आल्सो हाइलाइटेड इट्स इंपॉर्टेंस, बट व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड थ्योरी वी आर कन्फ्रंटेड बाय वेरियस मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस which are not only contradictory to each other but also create doubts. थ्योरी का मतलब होता है एक तरह से theoretical orientation, theoretical frame of reference, theoretical model. These are various words used by various social researchers, so sometimes they are used as synonyms and in place of places they give opposite meanings. थ्योरी का मतलब होता है कि अगर हमने जो कॉन्सेप्ट, पहले हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट के बेस पे हमने उसको वैलिडेट किया तो फैक्ट्स बन गए, फैक्ट्स के बेसिस पे हमने उनको कॉन्सेप्ट्स बनाया, और जब हमने कॉन्सेप्ट्स की स्टडी की तो अब उनको हमने जर्नलाइज कर दिया। जर्नलाइज मतलब उनका सामान्यीकरण कर दिया। हमने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो यहाँ पे भी इस सोसाइटी में भी फिट होता है, दूसरी सोसाइटी में फिट होता है, तो वो हमारी थ्योरी बन गई। और जो थ्योरी होती है वो जर्नलाइज होती है, यानी कि उनका सामान्यीकरण किया जा चुका होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब हमें टेस्ट करना होता है तो हम लोग थ्योरी को टेस्ट करते हैं, ना कि किसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहे हैं, ना किसी फैक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग थ्योरी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो थ्योरी है वो वैलिडेट हो चुकी है, वो एक यूनिवर्सलाइजेशन के फिनोमेना में आ चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आप Hope this is clear to everyone. If you have any doubt, comment down in the comment section. If you like the video, please hit the bell icon and share it with your friends and families. क्योंकि काफ़ी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ व्यू में आती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनको आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, बिकॉज these videos are very helpful to everyone, not to the specialist students of sociology but also to the other stream students. So thank you, take care of yourself.